Okay, so guys, now we come to secondary equity market. Secondary equity market, remember, it is associated with already existing shares. यहाँ पर जो पहले से existing shares हैं इन्हीं की खरीद बेच होगी. So already existing shares will be sold and purchased, right? And that is why primarily this is the market of investors. Investors जो पहले से निवेश जिन्होंने किया हुआ है, right, जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं, they may go out and sell the shares to other investors. So primarily this is a market of investors, and thereby this market does not benefit the fundraiser. Now one of the major aspects of this market is that it is driven by speculation. ये market जो है अपने आप में speculation के basis पे operate करता है, right? So what is speculation? Yeah, so what is speculation? Speculation क्या है, right? See, speculation is basically expectation of future prices, right, of any commodity, anything, right? किसी भी चीज़ का future prices, future movement क्या रहेगा prices का? Better word would be future movement of the prices. Future movement of prices. कि भाई prices जो हैं वो आने वाले समय में बढ़ेंगे, घटेंगे, right? So अगर हम ऐसा कुछ किसी की भी बात में किसी भी चीज़ के लिए अगर हम ऐसा predict करें, अटकल लगाएं, right? That is called as speculation. Now this speculation in itself, it can be both. It can be rational as well as irrational speculation. ये जो है अपने आप में rational भी हो सकती है, किसी पर आधारित हो सकती है, किसी लॉजिक के आधार पर. And it can be irrational also. Irrational जिसका कोई लॉजिक नहीं, right? I mean you can't put a name to it, you can't put a number to it, right? बस मार्केट में रूमर है कि भाई ये चीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, ये चीज़ का प्राइस जो है घट जाएगा. अब मुझे क्यों बढ़ जाएगा नहीं पता, लेकिन सब जो है वो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं. सो इट कैन बी रैशनल ऑल्सो, इट कैन बी इरैशनल ऑल्सो, एंड दिस इज़ द वन विच इज़ मोर प्रॉब्लमेटिक, राइट? रैशनल में तो क्या है कि भाई कुछ लॉजिक है विच इज़ ड्राइविंग द प्राइसेज और विच इज़ helping us to understand what is going to be the future movement, right? Now the end result is that speculation in itself tends to put the market in two phases. Speculation क्या करता है, मार्केट को ना phases में put कर देता है, right? So it may put a market into a phase where investors are willing to buy more. Investors are willing to buy more and more shares. Or on the other hand, it may put the market in a phase where investors are willing to sell more and more. Sell more and more amount of shares, which means investors here, they don't want to hold the shares, राइट? वो असेट को होल्ड करने के मूड में नहीं है. एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई फ्यूचर जब जाके प्राइसेस और नीचे गिर जाएंगे, द प्राइसेस आर गोइंग टू डिक्लाइन फर्दर, एंड दैट इज व्हाई दे आर विलिंग टू सेल मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ शेयर्स, राइट? नाउ दिस इज डिफाइंड एज बुल फेज एंड बेयर फेज ऑफ द मार्केट. सो इसे ही हम कहते हैं, राइट? जब इन्वेस्टर्स खरीदने के इच्छुक हो, व्हेन दे आर विलिंग टू बाय मोर एंड मोर, दिस इज कॉल्ड एज बुल फेज. बुल फेज. And this, when investors are willing to sell more and more, this is called as bear phase. Bear phase, right? आपने सुना होगा ना ये शब्द, that markets are bullish today, right? Bullish का मतलब है कि investors जो है hopeful हैं, they are hopeful that the prices are going to further increase. That is why they want to buy more and more currently. Markets bearish हैं, right? Markets are bearish today. Bearish means that investors are willing to sell more and more. Right? They are not in a mood to hold the asset. ठीक है?
Now, one of the major terms associated with secondary equity market which can guide majority of the investors is called market capitalization, or in short referred to as MCAP. So हमारे पास एक term है, right? Market capitalization. Referred to as MCAP. Market capitalization referred to as MCAP. Now, market capitalization can be of a company or it can be of a stock exchange. So हम MCAP कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनी के लिए, हम MCAP कैलकुलेट कर सकते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के लिए. ठीक है. MCAP ऑफ अ कंपनी कैसे निकालें? So MCAP of a company will be equal to the number of outstanding shares or tradable shares. मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने बाजार में निकाले हैं, है ना, IPO के दौरान निकाले हैं या OFS से निकाले हैं, राइट. सो वो उसके ट्रेडेबल शेयर्स हो गए. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. और दीज में ऑल्सो भी कॉल्ड एज ट्रेडेबल शेयर्स, जिनकी खरीद बेच हो सकती है. एंड यू मल्टीप्लाई दिस विथ शेयर प्राइस. मल्टीप्लाई दिस विथ शेयर प्राइस, राइट. हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पैरामीटर है. दिस इज अ वेरी गुड पैरामीटर टू अंडरस्टैंड, राइट, whether to invest in a company or not. How? So as you can see, MCAP of a company, it can help an investor look at the company and evaluate the company. Why? Because see, in longer time period, this parameter, number of outstanding shares or tradable shares, this is not going to change much. एक बार कंपनी ने IPO निकाला, 100 शेयर बेच दिए, अब ये पैरामीटर चेंज नहीं होगा, राइट. चेंज क्या हो रहा है? इट इज दिस पैरामीटर विच इज गोइंग टू चेंज. शेयर प्राइसेस हैं जो बेसिकली फ्लक्चुएट करेंगे, राइट. और अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इफ इट इज़ फ्लक्चुएटिंग अलॉट, मे बी देन इट इज़ नॉट अ गुड कंपनी, मे बी देयर प्रैक्टिसेस आर नॉट गुड, मे बी देयर बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस डिसीजंस और मैनेजमेंट इज नॉट दैट इफेक्टिव, राइट. बट इफ वी फाइंड दैट MCAP ऑफ अ कंपनी इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, है ना, हम देख पा रहे हैं कि भाई कंपनी का MCAP कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है 5-10 सालों से, इसका मतलब कंपनी साउंड है, ठीक ठाक ऑपरेट कर रही है, राइट. So MCAP becomes a very major parameter in order to understand the performance itself, right. Similarly, we can also calculate MCAP of a stock exchange. एक स्टॉक एक्सचेंज का MCAP भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालें? MCAP of all the companies that are listed on stock exchange. All companies listed on stock exchange, राइट. सो मान लीजिए उस स्टॉक एक्सचेंज पर 2000 कंपनियां हैं, तो हमने सभी कंपनियों का MCAP जो है ऐड कर दिया. ना दिस बिकम्स MCAP ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, राइट. Now obviously higher the MCAP of a stock exchange, better is the stock exchange. Why? See, this parameter MCAP of a stock exchange will increase in two format. ये दो कारणवश increase कर सकता है, right? This may increase if the share prices of the companies that are listed, if those share prices start increasing, right? अगर ये share price बढ़ रहा है तो automatically क्या होगा? MCAP जो है बढ़ेगा stock exchange का भी, which is again good. Right. And secondly, this MCAP of stock exchange can also increase if the number of companies listed on the stock exchange increase. दो चीजें हैं ना, ये कब बढ़ेगा, right? Possibility 1 तब है, right, when share price of listed companies increases, which is again good. Share price of listed companies is increasing. इसका मतलब भाई जो भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ऑन एन एवरेज देखें तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने उनके उन्होंने जो शेयर्स में निवेश किया है उनके शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं. अच्छा है, राइट. सेकंड, दिस मे बी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज इंक्रीजिंग, विच इज अगेन गुड, राइट. एज एन इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे? यू हैव टू ऑप्शंस. either to go to a market where there is only one shop selling the good, or will you prefer to go to a market which is selling, right,
where multiple number of shops, multiple number of sellers are selling the same good. Obviously multiple sellers, right? आपके पास वहाँ पे variety मिलेगी, है ना? आपके पास negotiation power रहेगा, right? So number of listed companies में क्या होगा? Automatically उस sector में many companies will be present, and thereby you can diversify, you can look for that particular company, right? So MCAP of a stock exchange is also a very good parameter to identify on which stock exchange should you go for investment, right? Higher the MCAP, better is the stock exchange. Similarly, higher the MCAP of a company, better is the company in itself. So overall, I can say that MCAP is a reflector of status of company, status of company on a stock exchange, or I can also say it is reflector of status of stock exchange. It is also a reflector of status of stock exchange in itself, right? So higher MCAP means higher is the or better is the company, or higher MCAP of stock exchange means better is the stock exchange. Next, I would like to take you to the stock exchanges of India. Stock exchanges of India. So you can give this as a heading, right? Now remember, equity market exchanges take place on stock exchange. So in our country, we have multiple stock exchanges, right? The very first one is obviously BSE, Bombay Stock Exchange, but one of the new ones, right, which is again trading at a very fast pace, and we do see NSE also in news in terms of bringing in technology based instruments, right? So शुरुआत करते हैं NSE से. So NSE was set up in 1992 and trade started in 1994 in itself. So यहाँ पे जो operations हैं, operations they started in 1994. और आज की डेट में NSE किस लिए फेमस है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टुडे इट इज़ फेमस फॉर ब्रिंगिंग इन इनोवेशन इन इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? आपको दिखाई देगा कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी लेडन इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे होंगे वो जनरली NSE पर ट्राई किए जाते हैं, NSE पर लाए जाते हैं, राइट? BSE, Bombay Stock Exchange, is one of the oldest in Asia. It was set up in 1875 in itself, right? Also, it is one of the world's top exchanges in terms of listed companies. इसमें जो listed companies की संख्या है, it crosses even 56-5700 today, right? So बहुत सारी companies present हैं इसमें. So one of the world's top exchanges in terms of listed companies. And MCAP of this stock exchange crosses $1.6 trillion. MCAP is more than $1.6 trillion, right? Then the third exchange that we have is your OTCEI. ये है आपका over the counter exchange of India. Over the counter exchange of India, OTCEI. It was set up in 1990 and it was set up on the lines of NASDAQ in US. So US में हमारे पास NASDAQ है और NASDAQ को बनाया गया था छोटी कंपनीज के लिए, स्मॉल कंपनीज के लिए, that if they feel shy on going to bigger stock exchanges, then they can come to NASDAQ and they can raise funds. So on similar lines, we also started OTCEI. OTCEI, it was started in 1990. Okay, so next to stock exchanges that I want to discuss, these are commodity based where derivative instruments are traded, right? So we have commodity exchanges also, और ये majorly दो हैं हमारे पास, इनको हम derivatives exchange भी कहते हैं. So we have NCDEX and MCX, National Commodities Derivatives Exchange of India. National Commodities Derivatives Exchange of India.
and the second one is MCX. Multi Commodity Exchange. Multi Commodity Exchange, MCX. Now both these stock exchanges, they have been operational since 2003. So common बात वही है that both of them, they have been operational since 2003, right? Difference क्या है? NCDEX, majorly the kind of derivatives that are traded here are agri based derivatives. So जो आपके agricultural derivatives based instrument होंगे, पढ़ेंगे हम derivatives भी, don't worry. So agri derivatives, they are traded here, whereas derivatives based on metals, natural resources, are traded on multi commodity exchange. So natural resources, metals based derivative instruments are traded on your multi commodity exchange. ठीक है, इसके अलावा अभी वो इंडियन गैस एक्सचेंज की भी बात चल रही है. So you must have heard that India is about to set up its gas grid, and on basis of that we will also have Indian gas exchange, right, where different participants now will be able to buy natural gas, right, on that exchange itself. So gas based derivatives भी आ जाएंगे. ठीक है, उसके लिए अलग से सेटअप कर रहे हैं. Okay, so guys, next topic that we will be looking up is your stock market index. Now remember, we know about stock exchanges of India, right? And the next aspect that we would want to look up is what are these indexes that we look for different stock markets, right? For example, for Bombay Stock Exchange we talk of Sensex. For NSE, National Stock Exchange, we talk of Nifty or Nifty Junior, right? So actually ये हैं क्या? ठीक है, so ये देख लेते हैं पहले. So remember that these stock market indices, they are more like a reflector of the status of the stock market only, right? So these are used to reflect as to how the market has actually performed, right? So in simple words I can say that these are simply used to reflect the performance of a few selected companies on the stock exchange. So अगर हमें simple language में denote करना हो, so we can say that stock market index is used to reflect the performance of a few or selected companies. Selected companies which are listed on that stock exchange. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है, that we are only taking into consideration only a few selected companies here and not the entire list of companies, the entire set of companies which are listed on the stock exchange, right? And this is the reason why we say that stock market index in itself will not give you the complete picture as to how all the listed companies have performed. Only a few listed companies are taken into consideration when we construct stock market index, right? तो इसका कुछ criteria भी है. There is a certain criteria as to how we pick up these a few selected companies, right? Criteria क्या है? What is the criteria for these selected companies? So our objective here is very simple, right? For example, आप imagine करो that we want to evaluate how is the education system in the country, right? And you ask me, you give me a task that, sir, define some methodology using which we can actually find out
the status of education system, the what is the current status, what do we find with respect to our education policy, right? So let's say we devise some kind of methodology. तो हमने एक methodology devise करी, हम कहते हैं कि that we will pick up schools in the district, right? So हम क्या करेंगे, district के सभी स्कूलों में जाएंगे, we'll go to all the schools, right? Now in each of these schools, what we'll do is we'll go to all the classes, right? हम सभी क्लासेस में जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 5th से शुरू कर रहे हैं हम सर्वे. सो क्लास 5th हो गया, क्लास 6th आ गया, 7th, 8th, so on and so forth, right? And in each of these classes what I'll do is I will only pick the toppers. हम इस क्लास में से केवल उन बच्चों को पिक करेंगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे हैं, ठीक है? अब ऐसा हमने सिस्टम बनाया कि भाई आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से जाके क्वेश्चन पूछो relevant to that class, and if the student is able to answer, then obviously the education system is good. If the student is unable to answer, then obviously the education system is bad, है ना? अब आप इसमें चैलेंज देखो, look at the problem exactly, right? See, we are only picking the toppers here, only the people who are first, second, third in their class. So I am picking the topmost students of each class in each of these schools in a district, right? And this is not a random selection. ऐसा नहीं है कि हमने randomly बच्चे जो हैं पिक कर लिए, 40 स्टूडेंट्स में से किसी को भी randomly उठा के पूछ लिया. हम स्पेसिफिकली उन्हीं स्टूडेंट से सवाल पूछ रहे हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, राइट? सो अब ये क्या दर्शाएगा, राइट? दिस मे एक्चुअली टेल यू दैट इफ दी स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर, ऑब्वियसली दे आर टॉपर्स, राइट? तो ये बच्चे खुद भी अपने आप एफर्ट डाल रहे हैं. दे माइट बी अबव देन द एवरेज, सो दे आर एबल टू ग्रास्प वेरी इजीली एंड दे आर एबल टू आंसर वेरी इजीली, राइट? So they will not tell us about the good part, but one thing is for sure that if these students are also not able to answer, then definitely the education system is bad, right? यही दिमाग में आया होगा ना. तो वही कहानी यहाँ पर भी है. हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे पिक करेंगे. So मैं इसका पैरेलल ड्रॉ करता हूँ. So for example हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पिक किया, right? BSE, Bombay Stock Exchange. Now I told you that Bombay Stock Exchange comprises of more than 5600, 5700, right, companies. So obviously हम यहाँ पे क्या करें, पहले इसे सेक्टर में डिवाइड करें. So we divide this into multiple sectors. जैसे FMCG हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर, ऑटोमोबाइल आ गया, राइट? IT सेक्टर आ गया, लेट्स से बैंक सेक्टर आ गया, बैंकिंग आ गया, एटसेट्रा, so on and so forth, right? Now in each of these sectors I will pick the toppers, right? So आप क्या करो, हर सेक्टर में केवल वो कंपनीज पिक करो जो मार्केट कैप के बेसिस पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे है, राइट? सो पिक कंपनीज, फॉर एग्जांपल कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 ऑन द बेसिस ऑफ एम कैप. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था एम कैप क्या होता है. एम कैप इज बेसिकली नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स और ट्रेडेबल शेयर्स मल्टीप्लाइड विद देयर शेयर प्राइस, है ना? किसी भी कंपनी का एम कैप कैसे निकाले, सिंपली मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स या ट्रेडेबल शेयर्स, मतलब जो कंपनी ने आईपीओ के दौरान शेयर्स निकाले जिनकी ट्रेडिंग पॉसिबल है मार्केट में, राइट? मल्टीप्लाई कर दो उससे शेयर प्राइस से. सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे. शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, उसके बेसिस पर ऑटोमेटिकली एम कैप फ्लक्चुएट करेगा. तो हम क्या देख रहे हैं, किसी भी मोमेंट पर ऐसी कौन सी वो 3 कंपनी या 4 कंपनी है उस सेक्टर की जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है एम कैप के टर्म्स में. एंड नाउ आई विल यूज दीज स्पेसिफिक कंपनीज ओनली टू कंस्ट्रक्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ठीक है? सो दीज कंपनीज, दीज सिलेक्टेड कंपनीज, दे शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है? यहाँ पे देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम कुछ सेलेक्टेड कंपनीज ले रहे हैं इसके लिए कुछ क्राइटेरिया जो हमने रखा है. द क्राइटेरिया इज, फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट दीज कंपनीज दे शुड represent the entire set of economic sectors, right? They should represent different economic sectors, and the second criteria is that these companies, they should have higher MCAP in their sector itself. Should have
higher MCAP. Right? Now let's imagine any random day where you find that stock market index, मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स इज एक्चुअली जम्प्ड 500 पॉइंट्स, है ना, अभी 2-3 दिन पहले 500 पॉइंट्स की जंप ले गया, सो 500 पॉइंट्स बढ़ गया, राइट। क्या कहें कि सर क्या मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। So it may happen that stock market index is actually jumped by 500 points, but when you look at your investment, right, where you have invested, maybe that company has not featured into Sensex, है ना, stock market index में वो feature ही नहीं की है, and that company is still giving you losses, है ना, उसकी share value अभी भी घट ही रही है, बढ़ नहीं रही है, right, share price अभी भी घट रहा है. So what may actually happen here is that even if stock market index rises by 200, 300, 500 points, it is very much possible that because all the companies are not taken into consideration, right, majority part of the companies are left, so the investors may still be facing losses. The assets that they are holding, the shares that they are holding of the companies, right, they may still, their prices may still be decreasing, right, but the opposite is actually quite correct. अगर मैं opposite scenario की तरफ देखूं कि भाई stock market index ने खराब परफॉर्म किया है, so imagine a condition where stock market index has actually gone down, है ना, rather than increasing it has actually gone down. So अगर ये decrease का केस है, right, then I can say for sure that even the other companies in other sectors might have also not performed very well today, है ना, बाकी सारी कंपनीज के भी शेयर प्राइसेस घटे होंगे, ये मैं अनुमान से बिल्कुल सही कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब टॉपर्स ही अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, राइट, तो बाकी कैसे अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, ठीक है। सो एक ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स में हमेशा सारी कंपनीज को सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं रखा जाता है, ऑल द कंपनीज आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ओनली परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज इज टेकन इनटू कंसिडरेशन टू बिल्ड अप स्टॉक मार्केट इंडेक्स, and these selected companies also they come from different economic sectors and they should have higher MCAP within their sector, ठीक है। अगर आपको इतनी दो फंडा क्लियर हो गए ना, then it becomes very easy to understand all the stock market indexes of different set of stock exchanges, ठीक है। so एक बार करके फटाफट करके देख लेते हैं। so first of all let's look at CNX Nifty, हालांकि इसका नाम अब जो है, राइट, CNX Nifty. So CNX Nifty, ये सिंपल निफ्टी भी बोल देते हैं आप तो इसे, राइट, सिमिलरली इसको अब निफ्टी जूनियर ही कह देते हैं। CNX बेसिकली ये जो टर्म था ना CNX, इट स्टूड फॉर क्राइसिल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, है ना। क्राइसिल वो एजेंसी थी जिसने इसको बनाया था, राइट, अब उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं इसलिए इतना यूज़ नहीं करते हैं। सो मेजरली द टर्म दैट इज़ यूज दीज डेज इज़ निफ्टी। ऐसे ही अब जो और समय के साथ इसके जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि इसके नाम में 50 के साथ इसको डिनोट किया जाता है कि ये क्या है, निफ्टी 50 या निफ्टी 50 जूनियर, निफ्टी 50 जूनियर, ठीक है। सो निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में वी टेक इनटू कंसिडरेशन 50 companies. So performance of 50 largest companies, 50 largest companies. Again, these 50 largest companies, they should come from different economic sectors, first thing, and secondly these 50 largest companies again, ये जो 50 लार्जेस्ट कंपनीज हैं, एक तो ये अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर से आएंगी, प्लस दीज कंपनी शुड हैव हायर MCAP विद इन देयर सेक्टर, राइट। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लेट्स से हमने 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया, राइट। 10 सेक्टर्स में डिवाइड करने के बाद हर सेक्टर से आप MCAP के बेसिस पर टॉप 5 कंपनीज पिक कर लो और उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। नाउ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट वी ऑलवेज कंपेयर, राइट। हम देखना चाह रहे हैं कि टॉप मोस्ट कंपनीज ने भी कितना बेटर परफॉर्म किया है, तो कुछ बेस चाहिए, राइट, वी नीड समथिंग टू कंपेयर इट विद। सो बेस ईयर दैट इज कंसिडर्ड फॉर निफ्टी 50 इज योर 1995। बेस ईयर का फंडा आपको पता ही है, बेस ईयर क्या है, बेस ईयर इज बेसिकली योर
we can say this is more like a benchmark based on which I want to compare the performance, right? So base year यहाँ पे लिया जा रहा है 1995. Similarly we have Nifty 50 Junior. Nifty 50 में हमने टॉप मोस्ट 50 कंपनीज रखी हैं. Nifty 50 Junior में हम नेक्स्ट 50 कंपनीज ले लेंगे, राइट? सो परफॉर्मेंस ऑफ नेक्स्ट 50 largest companies on the basis of MCAP. On the basis of MCAP, right? So हर सेक्टर की हमने टॉप 5 कंपनीज तो ले ली यहाँ पर, राइट? Assuming that we had let's say 10 sectors on on national stock exchange. Similarly, अब जो 6 to 10 है, 6, 7, 8, 9, 10, these companies will be considered under Nifty 50 Junior, right? So what is the idea behind creating Nifty 50 Junior is that we have the toppers, but we also want to look at companies which are slowly rising, right? Which may be doing something good and may be rising within each of their sectors, right? तो ऐसी companies जो emerging companies है ना, वो definitely यहाँ feature कर जाएंगी, ठीक है? So performance of next 50 largest companies are considered. इसमें भी base year क्या लेंगे? Base year here is considered to be 1995 only. 1995. नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा स्टॉक इंडेक्स, राइट, विच इज सेंसेक्स इन इटसेल्फ. सो सेंसेक्स इज योर स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ BSE. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, राइट? सो इसका बेस ईयर हम पीछे जा सकते हैं. सो बेस ईयर फॉर सेंसेक्स इज कंसिडर्ड टू बी 1979. And one difference that you will notice here is that Sensex is not based on 50, rather it is based on the performance of 30 largest companies. Based on performance of 30 largest companies. 30 largest companies. सो जो टॉप मोस्ट 30 कंपनीज हैं हर सेक्टर में से, वो हमने बेसिकली पिक कर ली हैं ओवरऑल मार्केट में से ऑन द बेसिस ऑफ MCAP. And now these 30 companies are telling us that okay, how has the market performed relatively, है ना, कैसा मार्केट ने परफॉर्म किया है. सो इसी पर आधारित कुछ स्टेटमेंट्स मैं लिखता हूँ. लेट मी राइट डाउन अ फ्यू स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड यू ट्राई एंड आंसर वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ठीक है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. Consider the following statements. Regarding stock market index. अगर सवाल बनाना हुआ यूपीएससी को इस कॉन्सेप्ट पे, इस फंडे पे, तो कैसा बनाएगा वो मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ. ठीक है, सो इट विल से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट इंडेक्स. सो इट दे विल गिव यू स्टेटमेंट नंबर 1. स्टेटमेंट 1 दे कैन से, स्टेटमेंट 1 में कह सकते हैं दैट कंपेयर टू बेस ईयर प्राइसेस हाउ द शेयर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडेक्स. कंपेयर टू बेस ईयर प्राइसेस हाउ share prices are increasing और decreasing. किस प्रकार शेयर प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, राइट? हाउ शेयर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडेक्स. ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट.
फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट कह सकता है दैट कंपनीज, these 50 and 30 companies that we have, right, over a longer period of time, right, they may get replaced by some other company from a different economic sector. ठीक है. सो ये जो हमने 50 और 30 कंपनीज ली हैं निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में, सो दीज 50 और 30 कंपनीज considered in stock market index can be replaced by some other company from a different economic sector. ठीक है. सो ये हो गया हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ दे कैन से सिंपली दैट टेल अस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स is correct, and then they can give you that normal format that they give, right, जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. पहला ऑप्शन दे दिया 1 ओनली, सेकंड दे दिया 2 ओनली, सी दे दिया 1 and 2 ओनली, और डी दे दिया neither 1 nor 2. ठीक है. सो ट्राई एंड फिगर आउट इनमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. चलो. सो गाइज आई थिंक आई बिलीव यू मस्ट हैव फिगर्ड दिस आउट, है ना. सो इफ़ यू कंपेयर, इफ़ यू लुक एट दी स्टेटमेंट्स, अगर हम पहले स्टेटमेंट की ओर चलें, सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट कंपेयर टू बेस ईयर प्राइसेज हाउ शेयर प्राइसेज आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. फैक्ट्स अंडरलाइन करते हैं. बेस ईयर प्राइसेज के बेसिस पर हाउ शेयर प्राइसेज, एग्जैक्टली यही कंसिडर करते भी हम कि शेयर प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, राइट. दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड इन द इंडेक्स. बिल्कुल सही बात है, राइट. दिस इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टॉक मार्केट इंडेक्स की जो सही अगर डेफिनेशन होनी चाहिए वो ये होगी, है ना, दैट कंपेयर टू बेस ईयर प्राइस हाउ द प्राइसेज ऑफ दीज शेयर्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग is reflected in the stock market index itself, right. सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, सो ये 50 और 30 कंपनी, राइट, ये तो फैक्ट हुआ. सो व्हाट वी मेजरली सी इज दैट यूपीएससी एट टाइम्स दे मे गिव यू सर्टेन फैक्ट्स टू कंफ्यूज, है ना. ऐसा कुछ दे देंगे. जैसे इस बार एंटी डिफेक्शन पे क्वेश्चन था वेयर दे हैड स्टेटेड आउट दैट इन दिस ईयर, राइट, दिस पर्टिकुलर लीडर वाज और केम अंडर एंटी डिफेक्शन, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था एक. तो कई बार हमने देखा है कि ना यूपीएससी में फैक्चुअल डेटा को फज नहीं करते वो, राइट. मेजरली द फैक्चुअल डेटा इज गिवन करेक्ट. सो इवन इफ यू हैड नो क्लू, मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट इंडेक्स पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, राइट, और फिर ये ऐसा सवाल देते हैं कि 50 और 30 कंपनीज हैं, तो मान के चलना कि भाई इतना हद तक तो नहीं गिरेगा, राइट. यूपीएससी विल नॉट गो टू दैट एक्सटेंट टू फज अराउंड दिस डेटा, राइट. सो 50 और 30 कंपनीज पर यू डोंट नीड टू वरी, राइट. क्या होता है कि व्हेन स्टूडेंट बेसिकली रीड्स अप दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे बेसिकली गेट टू स्टक इन टू दिस ओनली, है ना. ये चीज़ें डेलिबरेटली डाली जाती हैं क्वेश्चन में आपको ऑफ गार्ड करने के लिए, ठीक है. सो अगर आप ऐसी चीज़ देख रहे हो स्टेटमेंट में, डू नॉट स्टार्ट पैनिकिंग देयर दैट आई डोंट नो अबाउट दिस, राइट. सो 50-30 कंपनीज छोड़ दो, राइट. लुक एट द अदर एस्पेक्ट. एक बार जरा आगे आके देखो स्टेटमेंट में, राइट. कह रहा है दीज कंपनीज दैट आर कंसिडर्ड इन स्टॉक मार्केट इंडेक्स, राइट. मान लीजिए ना लिखा होता दैट द कंपनीज दैट आर कंसिडर्ड इन स्टॉक मार्केट इंडेक्स can be replaced, right. this is my actual fact. ये है पहला फैक्ट जो मुझे चेक करना है, राइट. क्या कंपनीज जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स में हैं क्या वो रिप्लेस हो सकती हैं, राइट. सो एक एग्जांपल लिखते हैं. लेट्स से दैट ऑन सेंसेक्स वी हैव ऑटोमोबाइल सेक्टर दैट वी कंसिडर. सो ऑटोमोबाइल में वी कंसिडर 2 कंपनीज, राइट. हर सेक्टर से 2 कंपनी पिक कर रहे हैं. सो 2 कंपनीज जो टॉप में फीचर कर रही है, लेट्स से इट इज टाटा मोटर्स एंड द सेकंड वन इज लेट्स से मारुति सुजुकी, राइट. Now, can a third company replace these two, right? बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई तीसरी कंपनी मान लीजिए महिंद्रा, एम कैप के टर्म्स में
बढ़ गई, राइट. सो इट हैज़ रिप्लेस टाटा, है ना, सेकंड पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे फीचर कर गई है. सो कैन अ कंपनी, राइट, विच इज कंसिडर्ड इन स्टॉक मार्केट इंडेक्स, कैन इट बी रिप्लेस्ड? यस इट कैन बी. सो यहां तक ठीक हो गया. फिर कह रहे हैं दैट इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर कंपनी. यस इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर कंपनी फ्रॉम अ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर, राइट. यह है दूसरा फैक्ट जो आपको इवैल्यूएट करना है, फ्रॉम अ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर. ना इफ यू केयरफुली लुक, we are replacing an automobile company with an automobile company only, right. ऐसा नहीं है कि टाटा को जो है किसी कोई FMCG कंपनी रिप्लेस कर देगी. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. अगर IT की कंपनी है तो IT की कंपनी ही उसे रिप्लेस करेगी. विप्रो को इन्फोसिस ही रिप्लेस कर सकता है, राइट. ऐसा नहीं है कि टाटा को इन्फोसिस रिप्लेस कर देगा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. सो ये जो फैक्ट दिया गया है that they can be replaced from different economic sector, this is problematic and this is why this statement becomes incorrect. ये बना रहा है स्टेटमेंट को गलत, ठीक. and that is why the answer should be that one only is correct. the answer should be that one only is correct, ठीक है. एक और important चीज़ जो आपको याद रखनी है with respect to stock market indexes is what we usually find is that same company can be listed on 2 stock exchanges. तो भारत में जैसे मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक. सो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक ही कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है, राइट, एंड इट इज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो. लेट्स से टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं, राइट. So same company may be listed on 2 stock exchanges, right, and thereby their share prices may be increasing on both of them, right. हो सकता है कि दोनों ही जगह पर शेयर प्राइसेस वैसे ही सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, या डिक्रीज कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट टाटा मोटर्स मे गेट फीचर्ड इनटू द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ BSE. सो इसकी जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, राइट, सेंसेक्स, उसमें शायद ये फीचर कर जाए. और हो सकता है कि मान लीजिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें ये फीचर ना करे. ये भी पॉसिबल है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट. मे बी ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वी हैव अदर कंपनीज विच आर हायर देन दिस कंपनी. ये पॉसिबल है. हालांकि टाटा मोटर्स इतनी बड़ी कंपनी है भारत की, राइट, ये दोनों जगह ही प्रेजेंट होगी, और अगर एक जगह फीचर कर रही होगी तो दूसरे में भी फीचर कर रही होगी. बट लेट्स टेक एनी रैंडम कंपनी, आप कोई भी XYZ कंपनी ले लीजिए, राइट. सो बिल्कुल पॉसिबल है कि निफ्टी 50 में फीचर कर जाए, सेंसेक्स में ना फीचर करे, सेंसेक्स में फीचर कर जाए या निफ्टी 50 में ना फीचर करे, राइट. सो इफ दे गिव यू एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट अ कंपनी विच इज प्रेजेंट ऑन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैज टू गेट फीचर्ड इन बोथ स्टॉक मार्केट इंडेक्स, दैट स्टेटमेंट विल अगेन बी इनकरेक्ट. ये कोई कंपल्शन नहीं है. यहाँ तो सिंपली हम MCAP के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है. MCAP अगर बड़ा है सेक्टर में तो लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है. ओके, सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज योर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, है ना. जो हम ये कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस पढ़ रहे हैं, सो द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस is your SEBI, and I'm sure majorly all of you have heard about SEBI. जितने भी लोग आप देख रहे हैं, right, you must have heard about SEBI at least. न्यूज़पेपर्स में इधर उधर आपने डायनामिकली इसको दाएं बाएं तो देखा ही होगा, right. So under capital market reforms, the regulatory framework was established, right, where Securities and Exchange Board of India was set up in the country in 1990, right. So हमारी कंट्री में SEBI was set up in 1990 itself. So 1990 में इसको सेटअप किया गया, ठीक. एंड देन लेटर इट वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1992. मतलब कानून पारित किया गया और कानून के थ्रू इसको इसकी पावर्स दी गई, ठीक है. सो दिस बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1992. सो आज की डेट में हमारे पास सेबी एक्ट है, राइट, थ्रू विच सेबी गेट्स इट्स पावर्स एज अ ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स, राइट. सो अगर आपसे पूछ लें सेबी किस तरह की बॉडी है,
and they say that SEBI is a constitutional body. No, SEBI is not a constitutional body. It is nowhere mentioned in constitution. It gets its power through a law. एक कानून के तहत इसको इसकी पावर मिलती है. कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया है. ठीक है, इट इज़ सिंपली अ लॉ. सो इट इज़ सिंपली अ स्टैट्यूटरी बॉडी. एग्जीक्यूटिव भी नहीं है, राइट. ऐसा नहीं है कि इसका काम चेंज हो जाएगा. कानून के थ्रू पावर मिल रही है, कानून जो कहेगा उसी के अधीन जो है ये काम करेगा, उसी के थ्रू इसको पावर्स मिलेंगी. सो इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर 1992. नाउ रिमेंबर दैट सेबी एक्चुअली हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ रोल्स, राइट. सेबी के अपने डिफरेंट रोल्स हैं कैपिटल मार्केट में, बट इसका एक तो बेसिक रोल है और एक प्रैक्टिकल रोल है, राइट. सो सेबी हैज़ टू बेसिक रोल्स. सेबी हैज़ टू बेसिक रोल्स एंड देन सेबी ऑल्सो हैज़ अ प्रैक्टिकल रोल. इसके अलावा सेबी का एक प्रैक्टिकल रोल भी है, राइट. सो व्हाट इज़ द बेसिक रोल ऑफ सेबी, राइट. अब ये जो बेसिक रोल है ना, दिस इज़ वेरी मच implicitly stated out, explicitly stated out within the SEBI Act, है ना. तो जब अगर हम सेबी एक्ट देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उससे पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सेबी को ये दो काम तो करने ही है, राइट. वो तो इसके बॉडी के जो जेनेसिस है ना, उसी में ये बात बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है, राइट. विच मीन्स सेबी विल नेवर एस्ट्रे, विल नेवर गो अफार फ्रॉम दीज टू पर्टिकुलर रोल्स. हमेशा जो भी डिसीजन लेगा, जो भी आगे स्टेप लेगा, it will always be taken keeping in mind these two things. First, which is investor protection, and second, development of capital markets, right. पहला कि इन्वेस्टर्स जितने भी आ रहे हैं मार्केट में वो प्रोटेक्टेड रहें, सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. एंड सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स. ना इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में क्या करना है, राइट. आई मीन अगर हम इसे देखना चाहें कि सेबी ने किया क्या है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो वन ऑफ द मेजर थिंग दैट सेबी डज, इफ यू रिमेंबर, when I was teaching you IPO, I clearly outlined that SEBI asks the companies for a particular set of documents. कोई भी कंपनी जो चाहती है कि IPO इशू करूँ मार्केट में, उससे कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा. बोलेगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपके ऊपर कितना डेप्ट है, राइट. कितने टाइम में आप चुकाएंगे, आपकी बैलेंस शीट क्या है पिछले 3-4 सालों की, वो दिखाइए, राइट. सो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किस लिए मंगा रहे हैं, राइट. इसलिए मंगा रहा है दैट कंपनीज विच मे कम विद द इंटेंट ऑफ डूइंग फ्रॉड और विच मे कम विद द इंटेंट ऑफ टेकिंग अवे द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट, विल नॉट बी एबल टू फर्निश, है ना. वो कंपनी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएगी, लेजिटिमेट बिजनेस नहीं होगा, राइट. सो वहीं पे ही कंपनी इसको बाहर कर देगा, राइट. सो सेबी हैज़ बिल्ड अप सर्टेन गाइडलाइंस फॉर कंपनीज टू कम एंड एंटर द मार्केट्स, राइट. और वही सारे जो डिसीजंस हैं, दैट इन इटसेल्फ डिनोट्स दैट सेबी विल ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर गोल विच इज़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, राइट. इवन द KYC रूल्स, राइट, इससे भी तो यही कोशिश कर रहा है कि भाई मार्केट में फ्रॉड ना हो, है ना. जो एंटिटीज़ इन्वेस्ट करने आ रही हैं उन्हें भी यही पुश कर रहा है कि भाई हमें रेगुलेटर को पता हो, रेगुलेटर को एक आइडिया हो दैट विच एंटिटी इज कमिंग इनटू द मार्केट इटसेल्फ. सो सेबी विल ऑलवेज गो फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. ये इसका पहला मेजर बेसिक रोल है. एंड द सेकेंड गोल इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स. अब ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, राइट. दिस इज अ बिट सब्जेक्टिव. व्हाट डज डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट मीन्स, राइट, स्पेशली व्हेन वी टॉक ऑफ कैपिटल मार्केट्स. See, under development of capital markets, SEBI is going to encourage more and more of companies, more and more of fundraisers to come to the market. ठीक है. So इसमें कोशिश क्या होगी, that more companies, more fundraisers should come to the market. Then more investors should come to the market. फंडरेजर्स भी बढ़ते रहें, फंडरेजर्स भी आते रहें फंडरेज करने के लिए, इन्वेस्टर्स भी आते रहें, राइट. और ये कब आएंगे, दे विल कम व्हेन द मार्केट इटसेल्फ is secure enough, right, when the market itself is moving ahead. So more investors, more instruments, in fact better instruments, where SEBI will definitely try and use technology also, right. So ऐसे instruments जिनसे accessibility मिले, right, और ज़्यादा investors जो हैं आके invest कर सके market में, वो सारे ही कदम उठाएगा, right. So over the period of time, this has been the fundamental principle behind the working of SEBI, that first investor protection, इससे कभी नहीं डगमगाता, right. और दूसरा, हमेशा markets में जो है reform की process जो है वो जारी रहनी चाहिए, right, जिससे कि
इन्वेस्टर्स भी एक्सेस कर पाएँ इजीली मार्केट्स को, फंड रेजर्स भी आ पाएँ, राइट. But again, one of the major challenges that SEBI actually faces is the diversity between these two roles, है ना. So एक जो बहुत ज़्यादा जो challenging situation है SEBI के लिए ही अपने आप में as a regulator is the diversity that these two roles present, right. अब आप सोच के देखिए कि कितने diametrically opposite हैं ये, right. एक रोल कह रहा है that you have to protect the investor, right. Now let's say under the garb of protecting the investor, SEBI basically tries to build up more and more rules, है ना. SEBI क्या कर रहा है, पेपर वर्क बढ़ा रहा है कंपनीज के लिए जो एंटर करना चाहती हैं मार्केट में, राइट. बट बाय बिल्डिंग मोर ऑफ पेपर वर्क, राइट, बाय ब्रिंगिंग दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेगुलेशंस, बाय आस्किंग देम टू सबमिट ऑल ऑफ दीज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट, क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ कंपनीज विल एक्चुअली कम टू द मार्केट एज फंड रेजर, राइट. कम और कम कंपनीज होती चली जाएंगी क्योंकि उनके लिए क्या है, पेपर वर्क बढ़ रहा है, राइट. सो दिस इन इट सेल्फ बिकम्स वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और वन ऑफ द वेज, राइट, वेयर कंपनीज में फील शाय, वेयर कंपनीज में नॉट बी एबल टू कंप्लाई, एंड देयर बाय, राइट, ये जो दूसरा रोल है, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स एंड मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मोर नंबर ऑफ फंड रेजर्स कमिंग, दिस में नॉट एक्चुअली हैपन, है ना. तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों रोल्स में कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो है कि सेबी को एक बैलेंस्ड रोल प्ले करना पड़ेगा. सेबी विल हैव टू प्ले अ वेरी बैलेंस्ड रोल. इट कैन नॉट गो फॉर एक्सेसिव इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर एक्सेसिव इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए जाता है तो कंपनीज नहीं आएंगी, राइट. और अगर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए नहीं जाएगा, राइट, मान लीजिए अंडर काम कर रहा है, इसमें अंडर वर्क कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, देन, राइट, डेवलपमेंट विल नॉट टेक प्लेस, मोर एंड मोर नंबर ऑफ केसेस ऑफ फ्रॉड्स में टेक प्लेस इन द मार्केट, है ना. Thereby SEBI as a body will have to play a balanced role, with respect to these two basic roles. SEBI को अपने आप में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि ये दोनों रोल्स ही सही तरीके से फुलफिल किए जा सकें, ठीक है. सो ये तो हमारे पास बेसिक रोल. देन SEBI ऑल्सो हैज़ अ प्रैक्टिकल रोल इन द मार्केट. SEBI का एक प्रैक्टिकल रोल भी है. व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल रोल ऑफ SEBI? See, the practical role of SEBI is that all market participants, जितने भी कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, all these participants need to be registered with SEBI. ये सारे पार्टिसिपेंट्स SEBI के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए, है ना. जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली. Now I want to enter the market as a fundraiser. I want to raise funds, right? I want to bring an IPO and thereby bring money for my company. So the very first necessity is that I need to get registered with SEBI, right? तो मुझे SEBI के पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो भी उसमें कंप्लायंसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स होंगे, I will have to furnish all those documents and only then I can enter the market. Now remember, this becomes a bit important, right? Because it is SEBI, right? ये SEBI ही वो body है, it is SEBI only on whose shoulders lies the entire responsibility of regulating the capital market, है ना. अगर SEBI को ये जानकारी होगी ही नहीं, सोच के देखिएगा, राइट. इफ SEBI डज नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन एज टू व्हाट सेट ऑफ कंपनीज एंटरिंग द मार्केट, रेजिंग फंड्स, इट विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, ठीक है. Thereby one of the most important practical roles of SEBI is that all capital market participants must be registered with SEBI, and thereby it can cancel their registration, it can suspend their registration also if it finds that some of these companies are involved in, right, illegal activities or illegitimate activities.